Hello everyone. Today we will be discussing the second half of the chapter number 1, Graphs in Economics. Yesterday we discussed about importance of diagrams and graphs in economics, aspects to be considered while drawing a diagram or a graph, time-based line diagram, bar diagram, types of bar diagram, all these examples also we saw. Aspects to be considered while drawing a bar diagram, what is a pie diagram, and what are the aspects to drawing a pie diagram. Today we will be discussing the types of graph. There are basically these types of graphs, but in your chapter, in your textbook, they have discussed only one type of graph, and that is time series graph. Okay, let's quickly go through these types of graphs. If we segregate the types of graphs into categories, then we broadly can categorize them into three parts. Those are time series graphs, then graph for continuous frequency distribution, और उस heading के अंदर फिर there are subtypes, but basically the B is graphs for continuous frequency distribution, and third is logarithmic graphs. फिर continuous frequency distribution में you have already studied these types of graphs in statistics, that is histogram, that is much similar to the bar graph, but it is continuous. उसमें कोई space नहीं होती है graphs के बीच में, that those are made by rectangular graphs, rectangular bars. Then is frequency polygon, frequency curve, and cumulative frequency polygon. You have already studied, you know how to draw them. Okay, but in this chapter we'll be discussing only the time series graphs. What are the time series graphs? Okay. This is an example of a time series graph. Yes, you can see here different sounds can be seen with these types of graphs. Why do we need time series graphs now? जब हम किसी ट्रेड साइकिल की बात करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर या फिर एराटिक चेंजेस होते हैं. एराटिक इज इरेगुलर चेंजेस, यानी they can be, sometimes they can be predicted, sometimes they cannot be predicted. तो ऐसे ट्रेंड्स को, ऐसे अप्स एंड डाउन्स को समझने के लिए टाइम सीरीज चाहिए होती है, टाइम सीरीज ग्राफ चाहिए होते हैं, बिकॉज these basically observe what the changes over a period of time. पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पर्टिकुलर ट्रेंड्स देखने के लिए हमको टाइम सीरीज ग्राफ्स चाहिए होता है, राइट. द ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ statistical tools, and when graphs are drawn taking these changes as variable and time period as base, क्योंकि यहाँ पे base जो है that is more important. base है time period, जैसे over a period of year और over a period of decade, जैसा भी जो भी time period है उस basis के हिसाब से क्या changes आ रहे हैं, कैसे variable हो रहे हैं, that is that can be easily seen in time series graphs, and then such graphs are called time series graph. Okay, I showed you an example also. जैसे यहाँ पे ईयर में दिया हुआ है फ्रॉम द ईयर 1998 टू 2008, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है इन परसेंटेज. ठीक है, तो कभी वो 4.5 से कम भी हो रहा है, कभी वो अचानक से 6 पॉइंट, जैसे 2003 में 6 भी हो रहा है, फिर वापस डाउन भी आ रहा है, फिर वापस ओरिजिनली 4.6 यानी कि ओरिजिनल 4.5 जितना ही पहुंच गया है, और फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड है, राइट. तो इसमें से अगर हम ये पूरी डेटा टेबल ना देखते हुए अगर हम इसको हम ऑब्जर्व करें तो हम समझ कि क्या हो रहा है. पहले जो था एम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो डिमिनिश हुआ, नीचे आया, साइमल्टेनियसली इट स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता गया एक अच्छी सी नंबर पे पहुंचा 6. उसके बाद फिर से वो डिक्लाइन होना चालू हो गया, यानी 2006 से वो उसमें थोड़ा सा कांस्टेंट रहा, फिर वो ये सिर्फ एक ग्राफ देख के भी हम समझ सकते हैं. उसके लिए हमको जो टेबल है उसको स्टडी करना है विद टाइम कंज्यूमिंग आल्सो, और थोड़ा सा बोरसम भी हो जाएगा, लेकिन आपने एक ग्राफ देख के आपने उसको इजीली समझ लिया. तो
क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी हम कोई ट्रेंड्स, कोई भी हम चेंजेस, whether they are regular or irregular, whatever, over a base time period, if you observe them, then that is known as time series graph. Okay. Yes, these were all the types of diagrams and graphs in this chapter. And the second half of the chapter basically deals with the use of technology in the study of economics. अब हम क्या पढ़ेंगे आगे कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज हो रहा है। तो उसको पढ़ने के लिए हम 3 अलग अलग कंसेप्ट से पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से यूज करता है, फिर कंप्यूटर को यूज करते वक्त हमको क्या क्वेश्चंस नहीं कॉशियस यानी लाइक क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हाउ व्हाट थिंग्स आर देयर लाइक वी शुड कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग कंप्यूटर्स एज अ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर उसके लिए भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और लास्ट में विल स्टडी अबाउट द सीडीज यानी डेटा सीडीज जो होती हैं, फिर उसके लिए भी जो ड्रॉबैक है, व्हाई कैन नॉट वी यूज देम मोर ऑफन, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, सो मूव टुवर्ड्स दिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हम कंप्यूटर्स को किस तरह यूज करते हैं, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के एज में रह रहे हैं। हर चीज, अगर आपको भूख लगी है खाना ऑर्डर कर दो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आप बोर हो रहे हो मूवी देख लो, बात करनी है किसी से फ्रेंड्स रिलेटिव से कांटेक्ट कर लो, इफ यू आर गोइंग टू मूविंग टू एन अननोन रोड तो उसको अपना रास्ता नेविगेट कर लो, ठीक है। अगर कुछ परचेज करना है ऑनलाइन परचेज कर लो, इतनी सारी चीजें, इवन टिकट्स बुक करने से लेकर कुछ भी, छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज के लिए भी वी यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बट हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट how the computer technology helps us in studying economics. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में कैसे हेल्प करती है? फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशंस। यस, वी कैन मेक impressive and powerful PPTs to study, to analyze any economic concept. For example, chapter हम अभी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं with the help of this PPT, this PowerPoint presentation. So it's a fine example of studying economics with the presentations. But यहाँ पे हम जो presentations बोल रहे हैं वो जैसे किसी भी बोरिंग से बोरिंग कंसेप्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इफेक्टिवली बहुत अच्छे से और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इतना बड़ा बजट जो होता है, उस बजट को अगर हम लोग चाहें तो समझाने के लिए हम उसको स्लाइड्स में डिवाइड करके विद कलर्स एंड विद इफेक्ट्स बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले वाले में बजट का मीनिंग समझा दिया, फिर बजट के अकाउंट्स बता दिए और उसके बाद फिर उन सबके मीनिंग्स बता दिए। ऐसे करके आप पूरा का पूरा बजट जो है वो एग्जाम्पल, और लास्ट स्लाइड पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं किस तरह से बजट बनता है और किस तरह से प्रेजेंट बनता है। तो ऐसे स्लाइड्स के हेल्प से आप बहुत अच्छे से पीपीटी बना सकते हैं एंड दैट कैन बी रियली हेल्पफुल इन स्टडीइंग द कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड इज एक्सेल वर्कशीट्स। एक्सेल वर्कशीट्स आप समझते हैं क्या होता है, यू हैव नोन एमएस ऑफिस, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर प्रेजेंटेशन तीनों होते हैं। एक्सेल वर्कशीट कब क्यों चाहिए होता है? में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज एनॉर्मस, बहुत ज्यादा डेटा होती है और बहुत ज्यादा सेकेंडरी डेटा यूज होती है। इकोनॉमिक्स डील्स विद लॉट्स ऑफ डेटा और रिसर्चर्स को थाउजेंड्स ऑफ डेटा से डील करना होता है। तो क्या होता है उसके लिए दे नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, और उसके लिए एक्सेल वर्कशीट्स वर्क्स लाइक मिरेकल्स। उसमें अंदर बहुत सारी शीट्स, यू नो, I need not explain it in detail because you know, you are aware of Excel sheets. So many sheets are available और एक एक शीट इतनी बड़ी होती है जिसमें आपने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, अगर आपको इतना बहुत बड़ा कॉलम है तो you need not waste time in calculations. Just at the click of one button, you can find the sum, you can find the averages, you can find the correlations, etc. So Excel is a boon calculating this data and working with them. Third is diagrams and graphs. डायग्राम्स और ग्राफ्स भी कंप्यूटर्स के थ्रू ड्रॉ हो जाते हैं। और अभी तो आपको पता है कि एक्सेल में भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला डालते हैं तो यू कैन गेट देम ड्रॉन ऑन दी एक्सेल शीट आल्सो। या देन इज स्टोरेज टूल्स। अब स्टोरेज टूल्स कैसे होता है, देखो या पहले क्या होता था, वी नीड टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा फिजिकली। कैसे फिजिकली?
बुक्स में, नोट्स में, फाइल्स में, किसी भी तरह से जर्नल्स बना के स्टोर किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कभी मॉइस्चर की वजह से गीला हो जाना, कभी फट जाना, कभी पेस्ट, मतलब जो जैसे दीमक वगैरह लग जाता है तो पेस्ट की वजह से, कीड़े मकोड़े की वजह से वो खराब हो जाता था। तो उनको प्रिजर्व करना बहुत बड़ा इशू होता था। अब क्या है, उसको स्टोर करना इट्स वेरी इजी, बिकॉज स्टोरेज कैसा हो गया है, वी हैव सो मच स्पेस। अब हम उसको कितने पुराने डिटेल्स को, कितने भी बड़ी, जितनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैसे, सपोजिंग आपके पास स्टोर डेटा है फिजिकल फॉर्म में, अगर आपने अभी ऑफिस चेंज की तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरा फिजिकल डेटा जो है वो दूसरी ऑफिस में ले जाना पड़ेगा। हाउएवर अगर आपने कंप्यूटर के थ्रू डेटा स्टोर करके रखी है तो आप कैसे ले जाओगे, बहुत इजी है, पेन ड्राइव में ले जाइए, हार्ड डिस्क में ले जाइए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेटा इज आल्सो वेरी इजी with the help of computer technology. Okay, then there are other tools also. Other tools यानी ऐसे बहुत सारे statistical programs हैं, for example SPSS, eViews, then there are SAS etc. ऐसे टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग को, जिसमें लाखों की तादाद में ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो मिनट्स में कैलकुलेट हो जाती हैं, बट यू नीड टू पुट अ राइट फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स को खरीदती हैं और अपने लिए, अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। हाँ, हाउएवर कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो आपको नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल PSPP है और ग्रेटल करके है। ये जो नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज वो 1 मार्कर्स में या MCQs में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी अदर टूल्स। Yeah, with this we come to an end of the computer technology, but हम क्या करना चाहिए, we should take some precautions while using computer technology for the study of economics. क्यों करना चाहिए, क्या precautions, क्या questions लेने चाहिए। सबसे important चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने फॉर्मूला सही नहीं डाला, if you do not use the proper formula, the right formula, you may end up messing up with your data. जितनी डेटा होगी वो सारा मटेरियल आप लूज भी कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट वन इज एन एड। कंप्यूटर सिर्फ एक टूल है, आपको सिर्फ एक हेल्प है जो आपको स्टडी करने में हेल्प करता है। वो आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो स्टडी मटेरियल से, कि आपने बस कंप्यूटर है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट एन हेल्प, इट इज जस्ट एन एड। Then it helps to make the process of studying easier and faster, but it does not replace the process of studying. You cannot skip studying. It makes your studying faster, it makes your studies easier, and it makes the studies interesting also, but it cannot replace the studying. Then if you do not use the right commands as in computer, then क्या हो सकता है, we may end up losing our material. Last point is we may also end up getting incorrect graphs and data processing. कब अगर हमने इसमें प्रॉपर फॉर्मूला या प्रॉपर कमांड नहीं दिए तो हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ हो, जो हमारा डेटा हो, वो मिस इंटरप्रेट भी हो जाए, रॉन्ग भी आ जाए। ओके, तो दीज आर some of the precautions that you should take. These are caution you while that you should take before using computer technology. Then internet technology. अब internet technology से हम इकोनॉमिक्स में हमको क्या हेल्प हो सकती है, हाउ डज इंटरनेट हेल्प अस इन द स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ये देखिए, ये सारी चीजें ना पहले न्यू लगती थी क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, बट नाउ डेज ये सारी चीजें आपने इतने अच्छे से यूज भी की हुई है खुद, दैट दे आर नो मोर न्यू। दीज थिंग्स डज नॉट रिक्वायर द इंट्रोडक्शन एट ऑल. The first one is tutorials. आपने देखी हैं, you have seen a number of tutorials that are available on internet. यहाँ पे हम कौन सी tutorials की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशनल वेबसाइट्स रखती हैं, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हेल्प कर सकती हैं। उसमें दे प्रेजेंट देयर स्टडी मटेरियल्स अलोंग विद वर्कशीट्स ऑन ओपन एक्सेस लिंक। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिंक के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनके बने हुए प्रेजेंटेशंस को, उनके बनाए हुए ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं। ओके, सेकंड इज एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग आपने नाम सुना होगा, ये भी सब लोग जो भी होते हैं वो लाइव, दे कम लाइव एंड दे टेक योर लेक्चर्स, दे टीच यू समथिंग एंड दे ऑफर यू टू आस्क देम योर डाउट्स आल्सो. सो दीज आर ऑल एक्टिव लर्निंग. कभी कभी वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए भी डालते हैं और कभी कभी एक्टिवली उस वक्त ही लाइव भी होते हैं. तो दीज आर ऑल एक्टिव लर्निंग थ्रू
इंटरनेट, यस। देन रीडिंग मटेरियल्स। अच्छा, पहले क्या होता था, जितना आपको रीड करना है उसके लिए आपको उतने बुक्स लाने पड़ते थे। पीपल यूज्ड टू स्पेंड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग बुक्स, ठीक है। बट नाउ रीडिंग मटेरियल आपको जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, कितना सारा है, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जहाँ पे एनी बुक्स अवेलेबल, ठीक है। और कैसे मिलते हैं? ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यू कैन रीड देम। सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ जर्नल्स, जो भी आपको चाहिए, आपको बहुत ही इजीली एट द क्लिक ऑफ वन बटन यू कैन गेट देम। दीज मटेरियल्स आर आल्सो नोन एज, ऐसे ऐसे बुक्स को हम क्या बोलते हैं? ई बुक्स या ई जर्नल्स, राइट। ओके, देन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मिलना बहुत इजी होता है। आपने बस एक बार जाकर गूगल पे सर्च किया, जो भी आपको सर्च करना चाहिए था, आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अलग अलग जगह से आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा। तो इंफॉर्मेशन इज लाइक स्काई इज द लिमिट फॉर द इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उतनी आप लो, इंफॉर्मेशन इज फ्री। देन कम्स मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब हम और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें ले सकते हैं इंटरनेट से फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी टॉपिक को स्टडी करना है लेकिन मुझे रेफरेंस बुक पता नहीं है, तो यू कैन आस्क फॉर द नेम्स ऑफ द रेफरेंस बुक्स। या अगर आपको किसी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है कोई, उसके लिखे हुए कोड्स को या उसकी जो प्रिंसिपल्स ही यूज्ड टू फॉलो वो सब देखना हो, तो दैट आल्सो यू कैन इजीली फाइंड इट। डेटा। डेटा देखो क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हमको दो टाइप के डेटा होते हैं, वन इज प्राइमरी डेटा एंड द अदर वन इज सेकेंडरी डेटा। यू ऑल नो दैट। जब हम फर्स्ट टाइम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी, तो और जो किसी और की कलेक्ट की हुई डेटा अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमको बहुत सारे केसेस में चाहिए होती है, और सेकेंडरी डेटा लाने के लिए हमको लेने के लिए हमको फिर रिलायबल सोर्सेज भी पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इच्छा है कि मुझे बैंकिंग के लिए कोई डेटा चाहिए, तो आप क्या कहाँ जाओगे? तो you should, the proper place is that you should search the official website of RBI. सिमिलरली अगर आपको एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या कहाँ जाके देखना चाहिए? यू शुड चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ जीओआई। जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपको फाइनेंस ये बजट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या एनी अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू शुड check the website of the official website I'm talking about. You can check the official website of Ministry of Finance. In this way we can have data also internet. Okay, का ध्यान रखना चाहिए बिफोर यूजिंग इंटरनेट। सबसे पहली बात तो अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि जो इररिलेवेंट होती हैं, जो आपको नहीं चाहिए होती हैं, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देती हैं, या जो चीजें प्लेजराइज्ड होती हैं। प्लेजराइज यानी कॉपी की हुई कहीं से भी, नॉट जेन्युइन। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू शुड बी अवेयर कि आप किस रहे हो। ओके, सिमिलरली जिस तरह से कंप्यूटर को हमने एक टूल और एक एड माना था, उसी तरह से इंटरनेट भी एक टूल ही है सिर्फ। इट कैन नॉट रिप्लेस द बुक्स एंड टीचर्स और अवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। हम सोचें कि हमने बस इसको बटन दबा दिया, तुम सोच लो, इज इट पॉसिबल? नो वेज। Computer and technology, they are only tools. They cannot replace books and teachers. Okay, and as I told you earlier also, बहुत सारे substandard material, irrelevant information भी आ जाती है, तो we must avoid using those. Third is readers must have the wisdom of identifying the authentic material on the internet. तो हमको जब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको जब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए, तो वहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। Last topic of this chapter is data CDs. Data CDs, that is CD is compact disc, right? ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब बहुत सारी एजेंसीज या अथॉरिटीज, कोई भी हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, रिसर्च सेंटर्स हो या लेबोरेटरीज हो, जो भी होती हैं वो डेटा कलेक्ट की हुई, उनके पास बहुत सारी डेटा होती है, तो कभी कभी वो दूसरे लोगों को यूज करने के लिए उस डेटा को पब्लिक कर देते हैं। दैट इज दे स्टोर देम इन द डेटा सीडीज और उसको सेल करने के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा पर्टेनिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स indicators put huge data content in compact disc and sell those for researchers and educational institution. फिर जिस रिसर्चर को या जिस इंस्टीट्यूशन को चाहिए होता है डेटा,
वो उन सीडीज को परचेज कर लेते हैं और उन सीडीज से उनका जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सीडी ऑफ नेशनल इनकम, अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। ये सारे जो सीडीज होती हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। अगर सपोजिंग मुझे कोई रिसर्च करना है तो मैं ऐसी इनमें से कोई सीडीज ले लूंगी और उसके बाद मुझे जो सेकेंडरी डेटा चाहिए होता है दैट आई गेट वेरी इजीली। Such CDs are used by educational institutions and research institutes. ठीक है, ओके देन यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको काम की है, लास्ट पॉइंट। सम एजेंसीज लाइक CMIE, दैट इज CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये लोग डेटा सीडी नहीं, डेटा सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खरीदते हैं, बट दैट इज ऑब्वियसली very expensive. Okay, so with this we come to the end of this chapter. Thank you for